Yes. Screen visible है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Good. So in last lecture we studied about positive term series. Means a series whose all terms are positive numbers. Okay, and then we find that the sequence of partial sums is showing monotonically increasing behavior, right? Then by monotone convergence theorem, we observe that if the positive series in this series, if sequence of partial sums is bounded, then that series will be convergent, right? These things we studied in previous lecture. So that result can be written in the form of a theorem. Okay, we can write that result in the form of a theorem. Say, yeah, I write here. I can write in the form of theorem. That is a result. The theorem is a positive term series positive term series means elements are positive. Okay, is convergent if and only if its sequence of partial sums. Sequence of partial sums, that is Sn, is bounded above. Can I say like this? Okay. Proof is very simple. ये हमने डिस्कस भी करा था. Again I discuss. Since this series is positive term series, since it is positive term series, so therefore the sequence of partial sums is monotonically increasing. Right, students? We are discussing in our previous lecture, right? Yes, sir. Yeah. By monotone convergence theorem, every monotonically increasing and bounded sequence is convergent. ठीक है?
So therefore, this is monotonically increasing and bounded since lately. Okay, bounded. Okay, this implies or thus this sequence is convergent, and this implies or and hence this series is convergent by definition. Right, students? Because positive series is always monotonically increasing. Boundedness is given for partial sums. You can see here. Okay, partial sums is bounded if and only if. So this case is converse में क्या होगा? It is given to be convergent, but monotonic है, so उसी theorem से convergent हो जाएगा, right? So simple result. But you people know that you will find these papers this time in MCQ type, I think, है ना? So I think proofs are not disturbing for you this time. So what you need understanding of the concept. Understanding is must, and it will help you in the long run. So don't run away from understanding. Okay. कन्वर्स कर लेते हैं हम साथ में, ठीक है? कन्वर्स इज वेरी सिंपल. Conversely, suppose this series is convergent, right? Is convergent. This implies a sequence of partial sums is convergent, right? Right? This implies this sequence is bounded. Can I write like this, students? Can I write like this? If yes, what is the reason? कौन बताएगा मुझे? Someone must tell the answer. बच्चा बताओ. हाँ जी, कौन बताएगा? ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएगा. व्हाट इज द रीजन? रोल नंबर 1. रोल नंबर 1. पीजी इंटीग्रेटेड. हु इज रोल नंबर 1? बच्चा लोग, हर कन्वर्जेंट सीरीज बाउंडेड होती है. वी हैव प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट sequence is bounded, but converse need not be true. We have done, I think, many times. Right? Yes, sir. So it is very simple. So, okay. So next is a comparison test. This is again very important thing, and you need it many times in your solving the problems on convergent series. So we write that is comparison test. So this let un summation is from 1 to infinity, and this Vn with two positive series. Positive term series.
such that this un is less than or equal to k times vn, or all n bigger than or equal to m, right? Where m is a fixed number, right? Where this m is a fixed number, fixed positive integer. And k is some constant, or we can say also it is scalar both thing ever. K is some positive constant, right? So then this is a statement. So ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को. आपके पास दो सीरीज है, एक un vn, and elements of un are less than or equal to k times vn, means their elements are smaller than elements of vn. Okay, then number one, पहले हम आपस में इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए इन जनरल हमें दिया क्या है, un is less than or equal to k times vn, right? Less than or equal to k times vn. ध्यान से समझिएगा. इफ दिस इज कन्वर्जेंट, अगर ये जो सीरीज होगी ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये जो un वाला सीरीज है ये कैसा होना चाहिए, कौन बताएगा? चलो आप लोग आज अटेंटिव कम हो, आई थिंक. शुभम, शुभम इज नॉट हियर. देखो आपका सीरीज कैसा था, ये सीरीज है, राइट? एक सीरीज आपका ये है, राइट? आप के को 1 भी मान सकते हो, फिलहाल हम ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है? अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका जो सम होगा क्या होगा, फाइनाइट होगा. स्टूडेंट्स एग्रीड? मतलब बोला करो. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? If this series is convergent, it means this sum is finite, and every term un is less than vn. So what we can say the sum of this series un? Finite. Naturally, it will be less than or equal to this. So it will also be finite. Convergent. Finite. Okay. It means if vn is convergent, then un is also convergent. Convergent. Right? मतलब Yes, sir. ये कंपेयरिंग, हम कंपैरिजन से बता रहे हैं इनका बिहेवियर कैसा है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मैं फिर आपको बताता हूँ इसको अगेन लिख के. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के लिए कि आप लोग एक सीरीज ये एलिमेंट है, इसका बिहेवियर ऐसा है, राइट? ये वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट दिया है vn वाला, तो जो उससे छोटा होगा, फाइनाइट से स्मॉलर जो होगा वो फाइनाइट होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना? इसका कन्वर्जेंस बताता है कि ये भी कन्वर्जेंट है. मैं इसको ना प्रॉपर एक मैपिंग बना लेता हूँ, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. ठीक है? अगर ये कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट? तो देखिए एरो किधर से आ रहे हैं, v से. बट अगर un कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, नीड नॉट बी कन्वर्जेंट. Why?
because this Vn is bigger than Un. Un is finite, तो Un से जो bigger होगा वो we can't say it is finite. हाँ, जो UN से स्मॉल होता फाइनाइट का छोटा फाइनाइट होगा, फाइनाइट से बड़ा फाइनाइट हो या ना हो, we can't say. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Right? Similarly, if UN is divergent, divergent means sum is Not bounded. infinite. It means तो इनफाइनाइट से बड़ा भी तो इनफाइनाइट ही होगा, नहीं? तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना? मेरी बात समझ आ रही है लोगों को? इसको आप लेमैन लैंग्वेज Yes, में sir. ऐसे देख सकते हो, फाइनाइट से छोटा फाइनाइट, फाइनाइट से बड़ा वी कांट से. जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से बड़ा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से छोटा वी कांट से. We can't say. मेरी बात समझ आ रही है लोगों को? उसी को Yes, sir. उसी रिजल्ट को, इसी एक कॉमन सेंस लॉजिक को एक हमने कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्म दे दिया है, राइट? तो दिस इज योर Yes, sir. कंपैरिजन, दिस इज योर कंपैरिजन टेस्ट. तो कंपैरिजन कोई खास वो नहीं है, ये इजी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. ये बहुत एक लॉजिकल अप्रोच है, कुछ इसमें खास नहीं है मेरे ख्याल से. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट? तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है, राइट? वही चीजें हमने इस थ्योरम की स्टेटमेंट जो बनेगी, उन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है. लेकिन आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, जो फाइनाइट होगा उससे छोटा जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, फाइनाइट से बड़ा फाइनाइट जरूरी नहीं है, नंबर 1. और जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से बड़ा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट से छोटा जो टर्म होगा उसको इनफाइनाइट जरूरी नहीं है ना? तो ये हमारा Yes, sir. स्टेटमेंट है. सो देन नंबर 1, summation Vn is convergent. देखिए Vn में भी बताता हूँ आपको, इसी Vn is he convergent? Convergent is finite, right? Implies is Un is convergent. ठीक है. नंबर 2, summation Un is divergent, मीन्स स्मॉलर वाला डाइवर्जेंट है तो उससे जो बड़ा होगा वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा. Implies summation Vn is divergent. तो जो नीड नॉट वाले थे वो केसेस इसने नहीं लिखे, क्योंकि रिजल्ट में वही लिखा जाता है जो जनरलाइज होता है, राइट? यू कैन सी कन्वर्जेंट का छोटा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट, वही दो चीजें नोट करी गई है ना? राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. इसको आगे हम इन फ्यूचर अप्लाई करेंगे. तो प्रूफ्स आई एम स्कीपिंग, प्रूफ्स आई थिंक वी डोंट नीड प्रूफ्स. ठीक है, प्रूफ इसका अगर करना भी होगा इट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, सबमिशन लगाना है इनके साथ सिर्फ. ठीक है, तो एक जे टेस्ट हो गया आपके पास. उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है, ये टेस्ट है ये हम जहाँ पे यूज करेंगे, इनका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, दैट इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. बेसिकली इसको कंपैरिजन ही बोलते हैं, बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट ही कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें देखिए लेट समेशन UN, मैं समेशन को ऐसे लिखूंगा, समेशन ओवर n, n इज एनीथिंग, ओके, एंड दिस Vn
with two positive term series. ठीक है, such that see limit n tends to infinity un upon vn is equal to L, where L is non-zero. ठीक है, राइट। हम जहां लिख इसको नीचे लिखते हैं, where L is non-zero, फाइनाइट भी लिख देते हैं, फाइनाइट नंबर। ठीक है, non-zero और फाइनाइट, राइट। देखो फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, सी आप फिर इसका आंसर आपसे ही लेंगे हम। लिमिट है तो लिमिट देन आई कैन, अगर जो फाइनाइट वैल्यू कैन आई से un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी L टाइम्स vn, है ना, इक्वल, राइट। तो L क्या है, L इज सम स्मॉल नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इट मे बी वन आल्सो, फाइनाइट नंबर से सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर un कन्वर्ज करेगा इक्वलिटी है तो vn भी कन्वर्ज करेगा, अगर un डाइवर्ज करेगा तो vn भी डाइवर्ज करेगा, जहां vn डाइवर्ज करेगा तो एक जैसा बिहेवियर हो जाएगा दोनों का, समथिंग लाइक दैट। सो सॉरी, राइट। तो मीन्स व्हाट आई मीन टू से दैट their behavior is same, then either both converge together or both diverge together. So I write then both the series converge or diverge together. ठीक है बच्चा लोग। तो अगर दो सीरीज है, आप उनके nth टर्म ले लो, उनका रेशियो निकालो, अगर फाइनाइट आता है तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर बिहेवियर तो एक जैसा है बट हमें कैसे मालूम चलेगा दोनों कन्वर्जेंट है। तो अगर आपको एक सीक्वेंस के बारे में नॉलेज है तो दूसरे सीक्वेंस के बारे में नॉलेज नहीं चाहिए, उस केस में आपको एटलीस्ट एक सीक्वेंस का मालूम होना चाहिए कि ये कन्वर्जेंट है, जहां जैसा उसका बिहेवियर होगा दूसरे का बिहेवियर भी बिल्कुल सेम होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ठीक है बच्चा लोग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. Then we move forward. इस पर एक टेस्ट होता है, दैट इज
very important test. We call that test as P test. P test की मदद से काफी क्वेश्चंस आपके इजी हो जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, ठीक है. So that P Yes, test, sir. I tell you here. P test, ठीक है. तो इसमें आपका जो सीरीज होता है वो इस तरह का होता है, n का पावर p, right? So this series is convergent if this p is greater than 1. If p is greater than 1, greater than, not equal to, and it is divergent if p is less than equal to 1. It is something like this, ठीक है. तो इस तरह की जितनी सीरीज होंगी ना, जैसे ये वाली 1/n², 1/n³, 1/n⁻³ इस सब का आप आंसर दे सकते हो इससे, राइट. सो दे ऑल बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. तो बस अगर आपके पास ये 3 टेस्ट आपको मालूम है ना, आई थिंक यू कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है. तो मैं आपको सिंपल सी एक टर्म देता हूँ. मैं पहले आई थिंक आई शुड स्टार्ट फ्रॉम सिंपल क्वेश्चन. सो आई गिव ए सिंपल एग्जांपल. क्वेश्चन कैसा हो सकता है आप लोगों को, सी a question may be like this: examine whether the following series whose general term, now what do you mean by general term? General term means, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, nth term, तो उसकी nth term बता देंगे वो जनरल टर्म, ठीक है. आर गिवन बिलो, ठीक है. सीरीज का सिर्फ आपको जनरल टर्म दिया गया है, आपने बताना सीरीज कैसा होगा. फॉर एग्जांपल आई टेक दिस एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ n4 + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n4 + 1. ये nth टर्म दिया है, आपने बताना किसके बारे में है, आपने बताना इस सीरीज के बारे में, ये कैसा होगा. दिया सिर्फ आपको nth टर्म है. मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है. तो अब पहले देखो, अब ये रूट में दिया है तो नेचुरली इट इज लुकिंग डिफिकल्ट. तो लेकिन आपको अगर 3 टेस्ट अप्लाई करना आते हैं वो, देन इट बिकम्स वेरी इजी. नाउ सी सॉल्यूशन. आई कैन राइट un is n4 + 1 minus n4 + 1. बट आई डू n4 कॉमन लेंगे तो रूट है तो n² बार आएगा, 1 + 1/n4, ठीक है बच्चे लोग. माइनस आप इसको इधर से कॉमन ले लो n² को, देन यू विल गेट 1 + 1/n4, ठीक है स्टूडेंट्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again you write n² common, right? You write n² common, then basically this term is 1 + n4 का पावर -1/2, n² कॉमन ले लिया, and this is 1 + 1/n4 का पावर -1/2. थोड़ा सा इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चलो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है. ठीक है जहां तक.
अब आगे बताओ क्या आइडिया वाले लगाना चाहिए हमें? एक्सक्यूज मी सर। व्हाट वी शुड डू? हाँ जी बच्चा। सर -1/2 कैसे आया? Yes, sir. और सर ये तो मतलब, और ये टर्म जो है ये पूरी पहले ही 0 हो जाती। हाँ ये प्लस है, सॉरी। ये टर्म क्या हो जाएगी? बोलो बच्चा, ये शाबाश। मतलब UN जो है ये तो पहले ही 0 हो जाएगी ना, ऊपर जो जनरल टर्म है वो तो मतलब दोनों सेम ही है, A - A। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। एक मिनट बच्चा, यू आर राइट, इधर -1 है, ठीक है। हियर इट इज माइनस, सॉरी, दिस इज लिटिल बिट मिस्टेक। ओके, गुड, शाबाश, ठीक है। यस सर। राइट स्टूडेंट्स, नाउ दे आर डिफरेंट, राइट। देखो जब आपको पावर दिखेंगे ना, n स्क्वायर बाहर पावर आ रहा है, तो आपके मन में यही कंसेप्ट आएगा 1/n स्क्वायर। मैं इससे रेशियो निकालूंगा, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, दोनों का बिहेवियर एक जैसा हो जाएगा। तो दीज थिंग्स कम्स इन द माइंड जब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, इसको आपने कैलकुलेशन करना आपने, ठीक है। और हिंट दे देता हूँ साथ में। हिंट इज यू हैव टू अप्लाई, ये लेना है, इसको लेना है, टेक दिस एंड अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। इसको देखना आप लोगों ने। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, इसलिए ये आपको पहले मेथड्स इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझिए ताकि हम इन मेथड्स को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकें, राइट। तो अदरवाइज